So we'll continue with group 17, general trends we were doing. Down the group, atomic radius. What happens to atomic radius down the group? Yeah. Down the group, atomic radius increases. Okay. Yeah, very good. चलो atomic properties में ही ionization enthalpy. Now last class only we defined ionization enthalpy. It is amount of energy required to remove most loosely held electron from the outermost shell. Halogens have very high ionization enthalpy because they have 7 electrons in their valence shell. But highest is of inert gases because that shell is completely filled. Okay. But even they have very high ionization enthalpy. And due to increase in atomic size, down the group ionization enthalpy decreases. Okay. So left to right, if we move, halogen have a very high ionization enthalpy, but down the group from top to bottom as atomic size increases, ionization enthalpy decreases. अब ये सारे क्वेश्चन कैसा आता है, ये एक एक मार्क के पॉइंट आते हैं. डिफाइन ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन with respect to following points. तो वहां पे atomic radius, electronic configuration, ionization potential, allotropes, ऐसे कुछ भी 4 पॉइंट दिए तो 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. और हर एक पॉइंट मतलब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या कुछ भी है वो एक एक मार्क के लिए है, तो उतना ज्यादा नहीं लिखना है, खाली हमको उसका डेफिनेशन दे देना है. डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, किसका सबसे ज्यादा है किसका सबसे कम है, खाली उतना लिख दोगे तो बस हो जाएगा. ओके. तो यहाँ पे फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन. तो ये ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड बताना है खाली, विच इज हाई विच इज लो, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, बस वैसे थोड़ा डिस्कस करना है. एंड यू गेट ओनली 1 मार्क फॉर दिस. पर एमसीक्यूज में ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालूम होना चाहिए. कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे अभी इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है. Electron gain enthalpy is the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell. High effective nuclear charge and small size, they have maximum negative electron gain enthalpy. मतलब they release maximum energy because they have 7 electron and they are need of only 1 electron. So to become stable, they release more amount of energy in their respective periods. From top to bottom, electron enthalpy becomes less negative, मतलब decreases, ऐसा बोलते हैं. Okay, energy release is less. The negative value of electron gain enthalpy of fluorine is greater than that of chlorine. Of chlorine is greater than that of fluorine. अभी ये exception है, देखो ऐसा आना चाहिए था कि क्लोरीन की फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होना चाहिए था, पर क्लोरीन इज मोर देन दैट ऑफ फ्लोरीन. क्लोरीन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. अभी इसका रीजन है कि फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली स्मॉल, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स और इसलिए एनर्जी कम रिलीज होती है. ओके, आगे ये रीजन आएगा, आई विल शो यू ऑल. Now they have very high electronegativity. You know, halogens are very highly electronegative, and fluorine is the most electronegative element in the periodic table. पूरी electronegativity scale fluorine के base पे बनाई गई है. Maximum value of electronegativity is 4 on basis of Pauling scale, and it is given to fluorine. Down the group, electronegativity decreases. Okay. देखो ऐसा है, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3.2, देन 3, 2.7, 2.2. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अभी ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एग्जैक्टली ऑपोजिट है. इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड. ओके, सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट फॉर फ्लोरीन. उल्टा हो जाएगा, क्लोरीन की विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन, है ना.
So even here there will be an exception कि क्लोरीन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि क्लोरीन जब बना था तो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया था, तो इसलिए क्लोरीन को तोड़ने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगती है. So chlorine greater than fluorine, greater than bromine, greater than iodine. Due to small size and high interelectronic repulsion between lone pair of electrons in fluorine, the energy required to break fluorine molecule is less than that of chlorine, bromine and iodine. Okay, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ऐसे हो जाता है. इनफैक्ट ब्रोमीन से भी कम डिसोसिएशन एनर्जी. हाँ, वैल्यू वाइज देखो 242 है, 192 और 158 है. अभी देखो ये सब गिव रीजंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं. Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative when compared to chlorine, fluorine is strong oxidizing agent than chlorine. Why? Okay, the low dissociation enthalpy of fluorine bond and high hydrogen enthalpy of fluoride ion. देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम है क्लोरीन से, बट फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन से. तो रीजन लिखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब फ्लोरीन जल्दी टूट जाता है और वो हाइड्रेट जल्दी हो जाता है. हाइड्रेशन मींस फ्लोराइड आयंस विल बी कवर्ड बाय मेनी वाटर मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. Okay, so because of these two reasons, it is a stronger oxidizing agent than chlorine. Next, ये दिया हुआ है, in every period halogen has high ionization enthalpy. This is assertion, and the reason is every period halogen has the less atomic radius. अभी बताओ इसमें क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, बराबर से रीड करो फिर बताओ. Assertion is in every period. Assertion मतलब statement. A statement is given. Every period halogen have a high ionization enthalpy. और इसका रीजन दिया हुआ है in every period halogen have a less atomic radius. तो ट्रू है कि फॉल्स है वो बताना है. Both are true and R is correct explanation, correct reason. Both are true but R is not the correct reason. Statement is true but reason is false, or reason is true and statement is false. तो क्या सही है क्या गलत है बताओ. आशिफा करेक्ट. हाँ, अमृता इनकरेक्ट. चलो ट्राई करो एटलीस्ट. हाँ, आयशा इनकरेक्ट, अमृता इनकरेक्ट, जीत इनकरेक्ट, मारिया इनकरेक्ट. देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इन एवरी पीरियड हेलोजन हैज हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है मारिया. मैंने बोला था कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनर्ट गैसेस की होती है. इनर्ट गैसेस में कंप्लीटली फिल्ड शेल होता है. ओके, तो assertion is false and reason is true. So answer will become D. Assertion false है और reason true है, क्योंकि every period halogen have high ionization enthalpy नहीं आएगा. इसमें कैसा होगा, inert gases. पीरियड वाइज जाओगे तो इनर्ट गैसेस की सबसे ज्यादा हो जाएगी. ओके, और इन एवरी पीरियड हैलोजन हैव स्मॉलेस्ट साइज, दैट इज ट्रू. इनर्ट गैसेस की साइज हैलोजन से बड़ी होती है. कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से उनकी साइज बढ़ जाती है. So therefore reason is false, assertion is false and reason is true.
halogen have maximum electron gain enthalpy in their respective period. ये गिव रीजन है. तो अभी मैंने क्या बोला था कि हैलोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, एंड दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना. तो यहाँ पे लिखना है that due to small size and effective nuclear charge, halogen compared to other elements in the respective period. Okay, due to the small size and high effective nuclear charge, halogen have maximum electron gain enthalpy in their respective period. साइज बहुत छोटी है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है. वाई क्लोरीन एज, देखो ये वाला क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा गया है एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वाई क्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन. तो हम लोग यहाँ पर वही बोलते हैं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर रिपल्सिव फोर्स from 2p electrons of fluorine atom. To the add this electron, an extra amount of work is done to overcome repulsive force. So the energy released is less in case of fluorine than in chlorine, and therefore electron affinity of fluorine is less than that of chlorine. फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी 7 है, पर फ्लोरीन की साइज बहुत ज्यादा छोटी है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं उसको रिपल्शन ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उसको आसानी से अंदर आने देते नहीं है. ओके, और इसीलिए एनर्जी कम रिलीज होती है फ्लोरीन में कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन. अभी यही क्वेश्चन अगर उल्टा पूछा, यहाँ पे पूछा है व्हाई क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन. Why does chlorine have higher electron affinity than other halogen? तो बोलने का, due to more repulsion of 2p electron, there is less affinity for incoming electron. This results in less amount of energy in fluorine, and therefore affinity of fluorine is less than that of chlorine. और इसलिए क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाती है. Down the group, electron affinity decreases. तो ऑर्डर होना चाहिए था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. बस now because fluorine releases less energy, therefore order becomes chlorine, fluorine, bromine, iodine, and that is why chlorine has the higher electron affinity than other halogen. Okay, तो ये रीजन हो जाता है. Okay, चलो, order of electron affinity in halogen is, हाँ शिफा करेक्ट. हाँ जैन करेक्ट. आयशा इनकरेक्ट. अभी समझाया आयशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जीत इनकरेक्ट. अमृता इनकरेक्ट. अभी समझाया, दो रीजन दे देंगे कि क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके, सो क्लोरीन विल हैव हाँ क्लोरीन बशर, क्लोरीन हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन. डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, पर फ्लोरीन की एक्सेप्शनली क्लोरीन से कम है, इसलिए क्लोरीन की सबसे ज्यादा हो जाती है. ये रीजन अभी हम लोग ने डिस्कस किया लास्ट वाले में. व्हाई डज क्लोरीन हैव हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन अदर हैलोजन. ओके, तो क्लोरीन हैज हायर एफिनिटी देन अदर हैलोजन. हाँ, अभी खाली ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है. ओके, ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम गैस लिक्विड एंड सॉलिड ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस. एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाता है, और इसीलिए गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो फ्लोरीन पेल येलो कलर का गैस है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन लिक्विड है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस, एंड आयोडीन इज ब्लैक वायलेट सॉलिड, ग्रे मेटालिक सॉलिड या ब्लैक सॉलिड बोल सकते हो. साइज बढ़ती जाती है डाउन द ग्रुप, सो वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज होते जाते हैं. ओके, डेंसिटी इज इंक्रीजिंग क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, एंड देयरफॉर डेंसिटी इंक्रीजेस. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. ऑब्वियसली ये दोनों गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं. All halogens are colored because they absorb radiation in the visible region. Okay, so all halogens are colored because they absorb a particular light in the visible region. देखो जैसे लाइट गिरती है इसके ऊपर, halogens के ऊपर, visible region is from 4000 to 8000 angstrom unit. This is incident ray. Okay, the unpaired electron absorbs particular wavelength of light and transmit the corresponding wavelength of light. ओके, तो इसलिए हमको कलर दिखाई देता है. एंड कलर्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड लाइट्स. व्हाट वी सी, वो एक कलर की लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो दूसरे कलर की लाइट हमको दिखाई देती है. दिस विल स्टडी मोर डिटेल इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ज्यादा डिटेल में करेंगे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसमिटेड लाइट के बारे में. ओके, हाँ, ये एक मुनशेल व्हील होता है विबग्योर विदाउट आई. ओके, उसके हिसाब से कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कौन सी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, वो हम लर्न करने वाले हैं थोड़ा और डिटेल में बाद में. देखो अभी जितनी एटॉमिक साइज छोटी होगी तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, तो इसलिए ट्रांसमिटेड वेवलेंथ विल बी ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, इसलिए वो लाइट कलर्स होते हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टाइटली एंड ट्रांसमिट लो एनर्जी, और इसलिए वो लाइट कलर्स है. जैसे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगी, ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस लूजली, मतलब electrons can be easily jump, and therefore the transmitted energy is high and therefore they are dark colors. तो ऊपर वाले light colors होते हैं, नीचे वाले dark colors होते हैं. So because they transmit energy of they transmit low energy and they transmit high energy, और इसीलिए coloration में फर्क आता है. ब्राइट कलर से डार्क कलर्स जाते हैं. ऐसा कम एनर्जी ट्रांसमिट करोगे तो ब्राइट कलर्स, ज्यादा एनर्जी ट्रांसमिट करोगे तो डार्क कलर्स. ओके, और ये सब साइज के ऊपर डिपेंड करता है. ये मैंने पहले भी बताया है, पेल येलो, येलोइश ग्रीन, रेडिश ब्राउन और ब्लैक वायलेट सॉलिड. हाँ, डेंसिटी इंक्रीजेस. हाँ, ये मैंने बोला पहले भी, डेंसिटी ऑफ मेटल एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Fluorine and chlorine react with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water. Bromine and iodine are soluble in organic solvent like chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide. वैसे में dissolve ज्यादा होंगे. So they are more of ionic, they are more of covalent. The halogen that shows sublimation property. चलो नाम बताओ. Halogen which shows sublimation property. हाँ, बशर करेक्ट, दक्षित करेक्ट, शिफा करेक्ट, जीत, शिफा एंड जीत इनकरेक्ट. सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड से गैस, और वो कौन होता है? आयोडीन. आयोडीन अंडरगोज सब्लिमेशन.
आयोडीन ब्लैक वायलेट सॉलिड है, पर सब्लिमेशन में इट गिव्स वायलेट वेपर्स. सब्लिमेशन मीन्स कन्वर्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट. हाँ, फ्लोरीन और क्लोरीन तो गैस है ना शिफा. सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से गैस जाना है. थोड़ा हीट करोगे. कैम्फर मालूम है? कैम्फर, कॉकरोच के वो जो बॉल्स रखे हैं हम लोग घर में, वो कैसा होता है? सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट होता है. वो प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं. हाँ. कलर ऑफ ब्रोमीन इज, हमारिया करेक्ट. जीत, आयशा, अमृता, ओम करेक्ट. हाँ. ब्रोमीन इज, हाँ बशर करेक्ट. ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन लिक्विड. ओके. Zen correct. Color of iodine is, आयोडीन कौन से कलर का होता है? हाँ Zen करेक्ट. बशर, अमृता, मारिया, शिफा करेक्ट. ओके. हाँ जीत करेक्ट. ये वायलेट कलर का होता है, ठीक है ना? आयोडीन इज डार्क वायलेट कलर. वो सब्लिमेट होगा तो वायलेट कलर्स के, एकदम पिंक कलर्स के वेपर्स मिलेंगे. टॉप टू बॉटम डेंसिटी ऑफ एलिमेंट. डेंसिटी का क्या होता है? ऊपर से नीचे आओगे तो डेंसिटी क्या होगी? हाँ शिफा इनकरेक्ट. मारिया, दक्षित, जीत करेक्ट. बशर इनकरेक्ट. बशर मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर ऊपर से नीचे आओगे तो प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, न्यूक्लियस हैवी होता जाता है और डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी. तुम देखो, पहले गैस है, फिर लिक्विड है, फिर सॉलिड है, तो हैवी हो रहा है ना, तो इट इंक्रीजेस. मृणाली, आयोडीन सॉलिड है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, तो डेंसिटी हैवी हो रही है जैसे नीचे जाओगे तो. Okay, so we'll stop here. Now next class we'll do chemical properties. No, we'll do physical properties and electronic configuration and all that about group 18 elements. तो पहले तीनों के occurrence और electronic configuration of physical properties तीनों ग्रुप की करेंगे, फिर तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे. ठीक है, चलो, we'll stop here today.